شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ ہمارے مالی حالات بہتر تھے، پھر بھی ہم اپنا گھر نہیں خرید سکتے تھے۔ مکانوں کے کرائے مہنگے ہونے کی وجہ سے بجٹ کنٹرول میں نہیں رہتا تھا۔ تب ہی والد صاحب نے سوچا کسی ایسے علاقے میں پلاٹ خریدنا چاہیے جو نسبتاً سستا ہو، پھر اس پر رفتہ رفتہ مکان کی تعمیر شروع کر دیں گے۔ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جب لوگ اپنی پسندیدہ جگہ مکان نہیں خرید سکتے تو دور دراز سستے علاقے میں زمین خرید کر گھر آباد کر لیا کرتے ہیں۔ یوں والد صاحب نے بھی شہر کی ہی آبادی میں مکان بنا لیا۔ ان دنوں میری عمر 17 برس تھی۔ خالہ جان کے توسط سے ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ چونکہ ہماری خالہ ایک پوش ایریا میں رہتی تھی، لہذا لوگ خالہ کی وجہ سے رشتہ طلب کرنے بھی آبادی میں آ گئے۔ میں کافی خوبصورت تھی۔ پہلی نظر میں ہی خاور کے والدین نے مجھے پسند کر لیا۔ ان لوگوں کا اپنا بزنس تھا، ذاتی گھر تھا، لڑکا بھی خوبرو تھا۔ یہ رشتہ مناسب تھا۔ سب کا خیال تھا میں خوش قسمت ہوں، ورنہ کچی آبادیوں میں رہنے والی لڑکیوں کو ایسے رشتے کہاں ملتے ہیں۔ خالہ جان کی کوششوں سے بلاخر میری شادی خاور سے ہو گئی۔ دونوں کے والدین خوش تھے کہ اللہ نے خوب جوڑی ملائی تھی۔ ہمارا بھی آپس میں پیار ہو گیا۔ گھر میں ہی نہیں، دلوں پر بھی بہار آ گئی۔ میرا فرض ادا ہو گیا تو والدہ کو اب فکر لگی سمر اور صاحبہ کی۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں میٹرک پاس کر چکی تھیں۔ سمر کے لیے خالہ جان نے رشتہ ڈھونڈ نکالا اور میری شادی کے 8 ماہ بعد اس کا نکاح ایک خوشحال خاندان میں ہو گیا۔ اب صرف صاحبہ کا رشتہ ڈھونڈنا باقی تھا۔ ہم کسی کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ صاحبہ ہماری سگی بہن نہیں ہے۔ قصہ یہ تھا کہ اس کے والدین ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ وہ ابھی صرف 3 برس کی تھی۔ تب ہی میری والدہ نے یتیم کو گود لے لیا اور اپنے بچوں کی طرح پرورش کی تھی۔ جب سمر کی بھی رخصتی ہو گئی تو والدہ نے سکون کا سانس لیا۔ صاحبہ ابھی صرف 16 سال کی تھی۔ اماں کا خیال تھا وہ اکیلی رہ گئی ہے، کچھ دنوں بعد اس کی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گی۔ جب ہم دونوں لڑکیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں تو کام کا بوجھ صاحبہ پر آن پڑا۔ اماں زیادہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ قدرتی بات ہے کہ صاحبہ نے محسوس کیا پھوپھی مجھ سے زیادہ اپنی بچیوں پر توجہ دیتی ہیں اور مجھ سے گھر کا کام لیتی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ میری والدہ صاحبہ اسے اتنا ہی پیار کرتی تھیں جس قدر ہم سے ان کو محبت تھی۔ وہ لڑکیاں جن کے والدین اس دنیا میں موجود نہ ہوں حساس ہو جاتی ہیں، وہ ذرا سی بات کو بھی زیادہ محسوس کرتی ہیں۔ یہی حال صاحبہ کا تھا۔ کہتی تھی کہ پھوپھی جان ماں والا انصاف نہیں کر پاتی اور میں ان کی ناانصافی کو سہنے پر مجبور ہوں۔ یہ احساس تب زیادہ ہوا جب ہماری شادیاں ہو گئیں، ورنہ ہم دونوں بہنیں اس کا خیال رکھتی تھیں اور اس کو کسی کی کمی محسوس نہ ہونے دیتی تھیں۔ بات تو یہ ہے کہ صاحبہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ ہم دونوں بہنوں سے بڑھ کر خوبصورت تھی۔ 16 برس کی عمر میں ایک کھلتا ہوا گلاب تھی۔ میری شادی میں وہ ہر کام میں آگے آگے تھی۔ اس نے بہت دیدہ زیب لباس پہنا ہوا تھا۔ شادی کے بعد میں اپنے گھر میں خوش و خرم رہنے لگی۔ خاور کے روپ میں زندگی کا بہترین ساتھی، دعا کرتی تھی کہ خدا میرے جیسی قسمت ہر کسی کو دے۔ خاور میرا بہت خیال رکھتے تھے، میری ہر فرمائش پوری کرتے تھے۔ جب جہاں کہتی سیر کرانے لے جاتے، میرا ہی نہیں میرے گھر والوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اب میری سوچ صرف اور صرف ایک ہستی پر ختم ہو جاتی تھی اور وہ میرا شوہر تھا۔ ہر وقت اپنے گھر کو جنت بنانے کے خواب دیکھتی رہتی تھی۔ ہما وقت گھر کی سجاوٹ میں لگی رہتی۔ اپنا گھر مجھے بہت عزیز تھا۔ شام کو جب ان کے آنے کا وقت ہوتا، سانور کر تیار ہو جاتی، وہی تو میری کائنات تھے۔ ہم میاں بیوی مثالی کہلانے لگے۔ ایک منٹ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ جب میں کے جاتی خاور ساتھ جاتے، تب صاحبہ ان کی بہت خاطر تواضع کرتی تھی۔ وہ بڑی پرکشش لڑکی تھی، ہر کسی کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی تھی، جبکہ میں اپنے شوہر اور صاحبہ پر اعتماد کرتی تھی، کبھی کوئی بدگمانی نہیں ہوئی۔ خاور اگر صاحبہ کی طرف متوجہ رہتے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تو میں بہت خوش ہوتی کہ میرا خاوند مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی میرے رشتہ داروں سے پیار محبت سے پیش آتا ہے۔ انہی دنوں میں امید سے ہو گئی۔ طبیعت خراب رہنے لگی اور میں ہر کسی سے غافل ہو کر بیڈ پر پڑ گئی۔ ایسے میں صاحبہ نے میری بہت مدد کی۔ بچے کو جنم دینے کا وقت آ گیا اور میں اسپتال چلی گئی۔ بچہ آپریشن سے ہوا اور میں جلد چلنے پھرنے کے لائق نہ رہی۔ تب بھی صاحبہ ہی تھی جس نے میرے گھر کو سنبھالا اور خاور کی خدمت کی۔
वो हर काम उनका खुशी से करती, जिसकी वजह से मेरे सरताज ने मेरी कमी महसूस नहीं की और मुझे भी साहिबा की वजह से सुकून रहा। मुन्नी की पैदाइश के बाद मेरी सेहत काफी मुतासिर हुई और बिस्तर पर पड़ी रही। अम्मा मेरे घर आकर नहीं रह सकती थी। सास बेटी के पास अमेरिका जा चुकी थी। ऐसे में साहिबा ही हमारी उम्मीद की किरण थी। अम्मा ने उसे देखभाल के लिए मेरे पास रहने दिया। मैं बिस्तर पर पड़ी थी और साहिबा मेरी ही नहीं बच्चे की भी देखभाल करती थी। खाना पकाना, घर की सफाई सुथराई, खावर के काम, फिर बच्चे को नहलाना, फीडर बनाना, गरज हर काम इसी के जिम्मे हो गया। जब बीवी बीमार हो फिर भी सारे काम दो नाजुक हाथ अंजाम दे रहे हों तो साहिब की निगाह खुद बखुद इस पर ठहरने लगती है। मुझे पता भी ना चला और खावर साहिब की नजरें बदलने लगी। वो अब सिर्फ साहिबा से ही खुशदिली से कलाम करते थे। जाने कब से मेरा वजूद उनको कांटे की तरह खटकने लगा था, मुझको इल्म ना हुआ। जब उनकी खामोशी गहरी होती चली गई तब एक रोज में चौंकी। उस वक्त तक पानी सर से गुजर चुका था। अब ये मामूजाद ही घर की रौनक रह गई थी। बाकी सारी रौनकें मेरे शौहर के दिल से महव हो गई, हत्ता कि अपने प्यारे बच्चे की तरफ से भी गाफिल हो गए। एक बार भी उसकी तरफ ना देखते। जब मैं तवज्जो मबजूल कराती तो चौंक पड़ते, जैसे उनको कोई भूली हुई बात याद करा दी गई हो। मामला एक नाजुक मोड़ पर था और मेरी समझ में आ गया था, मगर मैं इस डर से चुप रहने पर मजबूर थी कि मुंह से निकली हुई कोई बात मेरा घर ना उजाड़ दे। एक तरफ में साहिबा की मरहून मिन्नत थी तो दूसरी तरफ अम्मा जान शदीद बीमार हुई। उन्होंने मेरे घर आना जाना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद ही उनको अस्पताल दाखिल होना पड़ा। समर उनके पास अस्पताल में थी और साहिबा मेरे पास थी। मैं अम्मा को पूछने रोज जाती तो नन्हे मंसूर को साहिबा के सुपुर्द कर जाती। खावर खुद मसरूफियत का बहाना बनाकर मुझे ड्राइवर के हमरा भेज देते थे। एक बात मेरे ड्राइवर ने नोट की कि जिस रोज में अम्मा को देखने जाती इसी रोज खावर दफ्तर से जल्द घर लौट आते। ये बात ड्राइवर ने बताई, फिर भी मैं शिकायत जबान पर ना लाई कि महज शक की बिना पर ऐसी बातों का अंजाम अच्छा नहीं होता। अब मेरे दिल की अजीब कैफियत थी। कुछ न कहती तो कुड़ती रहती थी, कुछ कहती तो मरती थी। साहिबा को घर वापस नहीं भेज सकती थी कि अभी घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ उठाने का हौसला न था। अम्मा को कहती तो वो जवाब देती, इसे वापस भिजवाने की इतनी किया जल्दी है, और साहिबा तो यहां इस कदर खुश थी, एक दिन भी घर वापस जाने को नहीं कहा। उल्टा यही कहती थी, हाय मुन्ने से इतना प्यार है, अब इसके बगैर कैसे रहूंगी। एक दिन मैं लेडी डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई और मुन्ने को साहिबा के सुपुर्द कर गई। खावर से कहा मेरे साथ चली, तो जवाब मिला, आज दफ्तर में अहम मीटिंग है, अभी नहीं जा सकता, ड्राइवर के साथ चली जा। मुझे जाने में देर हो गई, लेडी डॉक्टर जा चुकी थी, लिहाजा जल्दी वापस आ गई तो शौहर को घर में पाया। सोचने लगी कि उनकी तो अहम कारोबारी मीटिंग थी, मेरे साथ जाने से इनकार किया तो अब जल्दी घर क्यों आ गए हैं। शक यकीन में बदलने लगा कि यूं ही गैर मौजूदगी में ये दोनों मेरी मोहब्बतों के बाग को रोंदते होंगे। फिर तौबा तौबा करने निकली कि अल्लाह ये क्या मैं बुरी बातें सोचने लगी हूं। ये ऐसी बात थी कि किसी को नहीं कह सकती थी। मां बीमार थी, उनको कुछ कहती तो दिल पर ले लेती। दिल मुरझाने लगा। सोचती थी ये मर्द जात भी क्या शय है। मैंने तो अपनी मोहब्बत और वफा सिर्फ खावंद के नाम कर दी है और उन्होंने जाने क्यों मेरी जात से तगाफुल इख्तियार कर रखा है। जहन की वो कैफियत हुई कि फिर मैं के जाने से घबराने लगी। जब कहीं जाती इसरार करती, साहिब अब भी साथ चली। इसको अपने घर में अकेले छोड़ने से जी घबराता था। फिर वो हुआ जिसका गुमान भी कोई नहीं कर सकता। एक रोज मैंने शौहर से कहा कि अब मैं ठीक हूं, घर संभाल सकती हूं, हमें साहिबा को वापस छोड़ आना चाहिए। ये कहना था कि खावर बिगड़ गए। कहने लगे तुम्हारा दिमाग खराब है, बच्चा अभी छोटा है, तुम घर की तरफ तवज्जो दोगी या बच्चे को देखोगी। तुमको मुस्तकिल साहिबा की जरूरत है, अभी इसको यहां ही रहने दो। गरज किसी तरह न माने और मेरी कजिन के वापस भिजवाने की राह में आड़े आने लगे। कुछ दिन खामोश रही, फिर यही बात कही कि अम्मा बीमार हैं, उनको साहिबा की जरूरत है। कब तक ये हमारे पास रहेगी, इसे जाने दो। बोले तुम चाहती हो कि हमारा बच्चा बीमार हो जाए, तुम अपने बच्चे की दुश्मन क्यों हो। आखिर साहिबा को जाना होगा, मैंने सख्ती से जवाब दिया तो उन्होंने जिंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठा लिया। ये संजीदा मामला था। आखिर मुझ में क्या कमी थी। खूबसूरत थी और मैं खूब सीरत भी थी। क्यों शौहर ने नजरों से गिरा दिया था। सारी खूबियों के होते अपनी हैसियत मनवाने में नाकाम हो रही थी। ये बड़ी हौलनाक बात थी।
मैं एहसास कमतरी का शिकार होने लगी। अपना वजूद मुझे दो कौड़ी का लगने लगा। मैंने साहिबा को मजबूर करना शुरू कर दिया कि तुम अम्मा के पास जाओ और मेरे बच्चे को खुद से इस कदर मत मिलाओ कि फिर तुम्हारे बगैर ना रह सके। मैं इसे बच्चा ना उठाने देती तो रोने लगती थी। एक रोज जबरदस्ती साहिबा को तैयार किया और उसे अम्मा के पास छोड़कर आ गई। खावर घर आए तो आते ही साहिबा को आवाज दी कि खाना लाओ। वो होती तो जवाब देती। जब दूसरी बार सदा देने पर भी खामोशी छा गई तो वो बावर्ची खाने की तरफ जाने लगे। तभी मैंने कहा कि साहिबा वहां नहीं है, वो अम्मा के पास चली गई है। परेशान होकर सवाल किया, क्यों चली गई है, किसके साथ गई है? मैं खुद इसको छोड़कर आई हूं। खामोशी से कमरे में चले गए, खाना भी न खाया। अब सख्त मुस्तरिब रहते, बहाने बहाने से झगड़ते थे। इस कदर जिज किया कि मुझे मैके जाते बनी। यहां मां दोबारा अलील हो गईं तो उनको भी हाल दिल ना बताया। अल्लाह ताला की मर्जी के वो चंद दिनों बाद इंतकाल कर गईं। मेरी बात दिल में ही रह गई। उन्हें दिनों भाई और भाभी लाहौर से आए थे। जाते हुए कहने लगे, बहना अम्मा तो चली गईं, अब ये मकान फरोख्त करना है। बाबा बूढ़े हैं, उन्हें ले जाऊंगा मगर साहिबा को तुम्हारी भाभी नहीं रखेंगी, बड़े मसाइल होंगे, इसे तुम ही को रखना पड़ेगा। जब तक उसकी शादी ना हो तुम्हारे पास रहेगी। भाई ने ऐसी मजबूरी जाहिर की कि सब्र का घूंट भरकर खामोश होना पड़ा। मरता क्या न करता कि मिसदाक साहिबा को दोबारा घर लाई और भाई ने बाबा के मकान को ताला ठोंक कर चाबी जेब में डाल ली। किस दिल से इस यतीम कजिन को घर वापस लाई, मेरा दिल जानता है। वालदा की वफात के दूसरे रोज खावर खुद आए। उनका मिजाज खुद बखुद ठीक हो गया। मुझे कहते कि सब्र करो, तुम्हारी कजिन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा हूं, हम उसकी शादी किसी अच्छे घर में कर देंगे तो हमारा नाम होगा। देखो ना इस बेचारी का तुम्हारे सवा है कौन। मैंने खाला को फोन किया कि साहिबा को आप रख ले। समर के तो ससुराल वाले बहुत सख्त लोग थे, वो इसको नहीं रख सकते थे। खाला ने कहा, कुछ दिन तुम उसे रखो, मैं तुम्हारे खालू को मिला लूंगी। मगर मेरी तीनों बहुएं इस मिजाज की हैं कि यहां साहिबा की गुंजाइश नहीं निकलती। वक्त कैसे गुजर रहा था लिख नहीं पाऊंगी। हर वक्त उल्टी छुरी बनकर मेरे वजूद को लम्हा लम्हा ज़बह करता रहता था। अंदर अंदर कुछ हो रहा था जो मेरी नजरों से ओझल था और मैं वो सब कुछ देख नहीं पा रही थी जो तसव्वुर में मुझे रेजा रेजा कर रहा था। इस असना में 2 बच्चों की मां बन गई। दूसरे बच्चे की पैदाइश पर भी ऑपरेशन की वजह से काफी अरसा बिस्तर पर पड़ी रही। तब साहिबा मुकम्मल तौर पर मेरे घर की मालिका बन गई और फिर एक दिन क़यामत की वो घड़ी आ गई जब खावर ने मेरी मौत का बगल बजा दिया। बरमला कहा कि तुम मेरी बीवी रहना चाहती हो रहो, नहीं रहना चाहती तो तलाक ले लो, मगर बच्चे मेरे पास रहेंगे क्योंकि साहिबा तुमसे बेहतर उनको पाल सकती है। वो कौन होती है उनको पालने वाली? मैंने चीख कर कहा। तब खावर ने इत्मीनान से जवाब दिया, वो उनकी दूसरी माँ है जो तुमसे ज्यादा सुघड़ और सलीकामंद है। मेरे बच्चे तुमसे ज्यादा उसके साथ खुश रहेंगे, वो तुमसे ज्यादा उनसे प्यार करेगी। अजब मंतिक थी, निराली बातें थीं। सगी माँ से ज्यादा माँ की रिश्तेदार बच्चों से प्यार करने वाली साबित हो रही थी। ये सब किया था, एक सोचा समझा मंसूबा था। जानती थी कि मैं भाई और भाभी पर बोझ नहीं बन सकती, बच्चों के बगैर भी नहीं रह सकती। हर हाल में मुझे साहिबा को बतौर सौकन कबूल करना था, इसके सवा क्या चारा था। तलाक लेती तो कहां जाती। साहिबा और खावर जीत गए, मैं हार गई। खावर ने मेरी कजिन से शादी कर ली, इस लड़की से जिसको मेरे वालिदैन ने बेटी बनाकर पाला था। वालिद और भाई भी खामोश तमाशाई बने रहे। मेरे बच्चों का उनको ख्याल था। थोड़ा सा एहतिजाज और बस वो कुछ न कर सके और साहिबा खावर की दूसरी बीवी बनकर मेरे सीने पर मूंग दिलने लगी। काश अम्मा ना मरती, काश साहिबा के वालिदैन ना मरते या फिर मैं भी साहिबा को अपने घर ना लाती। इससे तो अच्छा था अपनी खिदमत और घर की देखभाल को मैं ज्यादा रकम देकर कोई खिदमतगार औरत रख लेती। आज किसी का भरोसा नहीं, अपनों का और ना पराये का। मेरे शौहर ने एक प्लाट पर 2 अलग अलग घर बनवाए और फिर हम दोनों को अलहदा रखा। मेरे पास मुलाजमा रहती है और साहिबा के पास खावर रहते हैं। वो बच्चों की खातिर दिन में एक बार सिर्फ 1 या 2 घंटा आते हैं, बच्चों से बातें करके चले जाते हैं। ये वही खावर हैं जिनकी मोहब्बत पाकर मुझे उन पर फख्र था कि उन जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर किसी का नहीं हो सकता। आज जो मेरा था वो किसी का हो गया और मैं हाथ मलती रह गई हूं। सच है, औरत की कोई हैसियत नहीं, मर्द जब चाहे इसको मलिका बना दे, जब चाहे तख्त से गिरा दे। इसके बच्चों की मां
ایک کمزور میکے والی بیوی بھلا اپنے خاوند کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ میں نے بھی سمجھوتا کرنے میں عافیت جانی، سمجھوتا کر لیا کہ کبھی تو میرے بچے بڑے ہوں گے، پھر مجھے معاشرے میں مقام مل جائے، خدا کرے میری آرزو بچے پوری کر دے۔ ناظرین، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔